પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ તો પરમેશ્વર તમારો આભાર માને, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ આજના સુંદર દિવસ માટે, આ સુંદર સમય માટે પ્રભુજી. તમે અમને એટલો તો પ્રેમ કરો છો પ્રભુજી કે તમે જોન 3 અધ્યાયની 16મી કડી પ્રમાણે તમારો એકનો એક દીકરો અમારા માટે બદલી નાખ્યો પ્રભુજી. અને એ દીકરાએ સુંદર કાર્ય કર્યું ક્રુસ ઉપર કે એમના મૃત્યુથી અમને નવું જીવન મળ્યું છે. એમના લોહીથી અમને ઢાંકી દીધા અને અમારા સર્વ પાપ એમણે એમની જાત ઉપર લઈને અમને શુદ્ધ કર્યા છે. બોલ તમારો પુષ્કળ આભાર માને છે. એમના પૂર્ણતાથી અમને નવું જીવન મળ્યું છે પ્રભુજી. અને એ નવું જીવન અમે રોજ ને રોજ એનો ઉત્સવ કરતા રહીએ છીએ પ્રભુજી. આ સમયને તમે પવન કરો પ્રભુજી. મારા બેન પુષ્પાબેનને તમે આશીર્વાદિત કરો. એમની જીભ, એમનો કંઠ, એમનું મન, સર્વ કંઈ અને તમારે ચરણે ધરીએ છીએ. પવિત્ર આત્મા એમને તમે તમારા કાબૂમાં લો અને તમે જે કંઈ ઈચ્છો છો એ સર્વ કંઈ એમના દ્વારા બોલાય અને જે સાંભળે છે સર્વ લોકો સમજે અને એમના જીવનમાં ઉતારે. પ્રાર્થના અમે મારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા કરીએ છીએ. આમેન. થેન્ક યુ પ્રકાશ. આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા જવાનું. ઘરમાં આગ લાગે ને આપણે કૂવો ખોદવા જઈએ કે ચલો પાણી નીકળે ને હવે એને હું એ આગને શાંત કરું, તો શક્ય છે? દુશ્મન આપણા ઘર પર હુમલો કરે અને પછી આપણે કહે ચલો હવે હું સૈન્યની ટ્રેનિંગ લેવા જાઉં, બંદૂક કેમ ચલાવી એની ટ્રેનિંગ લેવા જાઉં, તલવાર કેમ ચલાવવી એની ટ્રેનિંગ લેવા જાઉં, તો આપણે જીતી શકીએ? ના જીતી શકીએ. તો યુદ્ધમાં કોણ જીતે? તમારી દ્રષ્ટિએ યુદ્ધમાં કોણ જીતે? વંદનાબેન, યુદ્ધમાં તમે જીતીને આયા છો, યુદ્ધમાં કોણ જીતે? શસ્ત્રથી સજ્જ હોય એ જીતે. ચલો, શસ્ત્રથી સજ્જ હોય તે જીતે. એટલે મારી પાસે બધા શસ્ત્રો છે, મારા હાથમાં AK-47 છે, બધું જ છે. ટ્રેનિંગ. હું જીતી જઈશ? ના, ટ્રેનિંગ જરૂરી છે. ટ્રેનિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારે કોઈ પણ યુદ્ધ જીતવું છે, આધ્યાત્મિક યુદ્ધ, શારીરિક યુદ્ધ, આર્થિક યુદ્ધ, રોગોવાળું યુદ્ધ, કંઈ પણ તમારે યુદ્ધ જીતવું છે, ટ્રેનિંગ બહુ જરૂરી છે. માનો કે કોઈ છોકરાને સૈન્યમાં મોકલવામાં આવ્યો, ટ્રેનિંગ ચાલુ થઈ, એ છોકરો ટ્રેનિંગ બરાબર લેતો નથી. નાની નાની વસ્તુઓ જ્યારે શીખવાડવામાં આવે છે તો એ ધ્યાન આપતો નથી. ટ્રેનિંગનો પીરિયડ પૂરો થઈ ગયો. હવે માનો કે એણે પૂરેપૂરું કેવી રીતના બંદૂક ચલાવી, ગન ચલાવી, ખોલવી, બંધ કરવી, એણે કશું બરાબર ટ્રેનિંગ પોતે લીધી નથી, બેદરકારી રાખી છે. હવે એને યુદ્ધમાં આગલી હરોળમાં મૂકવામાં આવે છે. સામેવાળાની ગોળી એના પર વાગે છે, એની પાસે ગન છે, ગનની અંદર ગોળી પણ છે, પણ હી ડઝન્ટ નો, એને આવડતું નથી કે કેવી રીતના મારે આ ચલાવવી. તો એ જીતશે? એ હારી જશે. કદાચ આપણે જો સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની વાત કરીએ તો કંઈક આપણે આવા હોઈએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે વચનો મળે છે, શીખવાનું મળે છે, એના ખુલાસા મળે છે, ત્યારે આપણે બેઠા હોઈએ છીએ ત્યાં, પણ પેલા છોકરાની જેમ બરાબર ટ્રેનિંગ લેતા નથી, એ બરાબર આપણે શીખતા નથી, અંદર ઉતરવા દેતા નથી. એટલે પછી હવે જ્યારે પેલો દુશ્મન આપણી પર હાવી થાય છે, અલગ અલગ રીતે હાવી થાય છે. એફેસસ 6:12 કહે છે આપણું યુદ્ધ માટીના માનવ જોડે નથી, અશરીરી દુષ્ટ તત્વો, રોગચાળો, ગુસ્સો, અણગમો, તિરસ્કાર, અબદૂત વળગે, આ બધું અશરીરી દુષ્ટ તત્વ છે. એની સામે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે. હવે એની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે એફેસસ 6 કહે છે કે તમારા શસ્ત્રો સજી લો. દુશ્મને હુમલો કર્યો છે, આપણે એને હરાવવો છે, આપણે પ્રોપર ટ્રેનિંગ લેવાની છે. અને હવે વચન કહે છે એફેસસ 6:13 માટે ઈશ્વરના બધા શસ્ત્રાસ્ત્રો સજી લો, શસ્ત્રો સજી લો, પહેરી લો.
જેથી તમે કપરા કાળમાં શત્રુનો સામનો કરી શકો. કપરો કાળ આવે, કસોટી આવે, તકલીફ આવે ત્યારે તમે એ દુશ્મનનો સામનો કેવી રીતના કરી શકો? તો કે તમે બધા શસ્ત્રો તમે સજી લો. શસ્ત્રો કયા શસ્ત્રો? બાઇબલ આપણને એવું કહે છે કે પેલા અશરીરી દુષ્ટ તત્વ સામે લડવું હોય તો કે શસ્ત્રો પહેરી લો. કયા શસ્ત્રો? વચન કે છે સત્યનો કમરબંધ. સત્યનો કમરબંધ બાંધી લો. પછી કે છે કે ધર્મનું બખ્તર પહેરી લો. પછી કે શાંતિના શુભ સંદેશના સમાચારની તત્પરતાના પગરખા પહેરી લો. શાંતિનો શુભ સંદેશ. હવે કે છે કે શ્રદ્ધાની ઢાલ. હર વખત તકલીફ, કસોટી, સંજોગો બદલાયા, આ થયું તે થયું, શ્રદ્ધાની ઢાલ. તમારી ઢાલ હશે તો પેલા સામેવાળાની તલવાર તમારા સુધી આવશે નહીં. અને પછી કહે છે કે મુક્તિનો ટોપ ચડાવી લો. તમને મુક્તિ મળી ગઈ છે એનો ટોપ પહેરી લો. મળશે કે નહીં? ઉદ્ધાર થશે કે નહીં? કહે છે કે મુક્તિનો ટોપ ચડાવી લો. અને છેલ્લું કહે છે કે ઈશ્વરની વાણી રૂપી તલવાર ધારણ કરો. ઈશ્વરની વાણી, પ્રભુના વચન રૂપી તલવાર હાથમાં લઈ લો. જેમ ઈસુએ પેલો કસોટી થઈ ત્યારે કહે છે કે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, એ જ પ્રમાણે વચન કહે છે કે તમે પણ એ લઈ લો, વચનો લઈ લો. તો આ બધા આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ, આધ્યાત્મિક શસ્ત્રો છે. ઓકે, હવે વંદનાબેન જ્યારે આપણને સાક્ષી આપવાના છે કે આટલી મોટી કસોટીમાંથી કેવી રીતના પાર થાય, તો વંદનાબેન મને જ્યારે સાક્ષી કહેતા હતા ત્યારે એમણે એક ગીત ગાતા હતા. એમને જે બીમારી આવી, ડોક્ટર પાસે જતી વખતે, ડોક્ટર પાસે ગયા પછી એક ગીત ગાતા હતા. કે છે કે यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है. यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है. ઈસુને પહેરી શકાય આપણાથી? આવા ગીતો ગાતા હતા. એક વચન કે છે ઇમાન્યુઅલ, પ્રભુ આપણી સાથે છે. પછી ગલાતિયાના પુસ્તકમાં કહે છે કે ગલાતિયાના પુસ્તકમાં, કલોસાના પુસ્તકમાં કહે છે કે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણી અંદર છે. અને એક વચન કહે છે કે ગલાતિયા 3:27, એ બેન ગાતા હતા કે યીશુ કો મેં પહેને હું, ઈસુને તમે પહેરી લીધા છે. પણ એ વચન અનુસારની પ્રાર્થના બોલતા હતા. અહીંયા વચન કહે છે ગલાતિયા 3:27, કારણ સ્નાન સંસ્કાર દ્વારા ખ્રિસ્તની દીક્ષા લેનાર તમે બધાએ ખ્રિસ્તને પરિધાન કર્યા છે. યુ હેવ પુટ ઓન ક્રાઇસ્ટ. એટલે એ કહે છે કે એ ગીતનો જે મતલબ હતો એ વચન અનુસાર એ ગાતા હતા. અને વચન અનુસાર ગાઓ ત્યારે શૈતાન કેવો ભાગે, હવે એ વંદના બહેનના મુખે આપણે સાંભળીએ. આ વંદના. વંદનાબેન છે, અમદાવાદમાં રહે છે. પ્રભુના વચનમાં હંમેશા એ ખૂંપાયેલા હોય છે. અને ઈસુએ કીધેલું કે તમે મારી પાછળ ચાલી નીકળ્યા છો એનો મતલબ એવો નહીં કે તમારા પર કસોટી નહીં આવે, વધારે કસોટી આવશે. અને ઈસુએ કીધેલું કે ડરશો નહીં, એ બધા પર મેં વિજય મેળવ્યો છે. પણ જે વચનમાં હોય એના પર પેલો જે શૈતાન હોય છે, ઈસુની વિરુદ્ધ જે કામ કરે છે, એ વધારે જોરથી એના પર પ્રહાર કરે છે. પણ જો એ વખતે મેં હમણાં કીધું એ પ્રમાણે ટ્રેનિંગ નથી લીધી, આપણે એ શીખ્યા નથી કે શૈતાનને કેવી રીતના ભગાડવો, એ શસ્ત્રો આપણે નથી સજ્યા, તો શૈતાન જીતી જાય અને આપણે હારી જઈએ. પણ વંદનાબેન આપણને કહેશે કે એમણે શૈતાનને કેવી રીતના ભગાડ્યો. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं अपनी साक्षी लेने से पहले थोड़ा एक बात कहना चाहूँगी कि यीशु ने मुझे
सिर्फ मुझे तो बचपन से चुन लिया था जब मैं माँ के कोख में थी, पर मैं यीशु से मेरी मुलाकात 1997-98 में हुई, जब हम कॉलेज में थे और अलग अलग प्रभु के सेवक आते थे और हमें प्रभु के बारे में बताते थे और वचनों पे कैसे जीना है वो सिखाया। तब से ही मैं वचनों पे जीना शुरू कर दिया था कि ठीक है, वचन ही सब कुछ है जिंदगी में। और कहते था कि जैसे जैसे धीरे 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 जिंदगी में आगे बढ़ती गई और जब भी कभी तकलीफें आए वचन लिया और तकलीफ से बाहर। पर अभी तक मैं यीशु को सिर्फ जानती थी। यीशु को मैंने पहचाना 2017 में। एक होता है यीशु को जानना और एक होता है यीशु को पहचानना, यीशु के बारे में जानना और एक होता है यीशु को पहचानना। तो यीशु को मैंने पहचाना 2017 में और उस दिन से जो मैंने यीशु से पहचाना और उनसे जो मिली हूँ, रिश्ता जो बनाया है वो आज तक बरकरार है। और इसी रिश्ते की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ी होकर यीशु की महिमा गा सकती हूँ। सो बात उस दिन की है कि 2024 नवंबर 13 की कि एक नॉर्मल डे था। हमने खाना खाया दोपहर में, फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना की। 2024 के 12 तारीख को कुछ ऐसी घटना घट गई थी कि जिसके लिए काफ़ी दिल में एक वजन हो गया, दिल में काफ़ी बोझ था, तूफान आ गया था। पर फिर प्रभु के वचन के हिसाब से उससे हम दोनों ने लड़ाई करी और मतलब वचनों के साथ, और हम उस दिन प्रार्थना किया, हाथ पकड़ के टंग्स में प्रार्थना किया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया। और फिर मैं 2:30-3 बजे क्लास लेने गई। प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया, मुझे और मेरे हस्बैंड को आशीर्वादित किया कि हम एक अपना बिजनेस चला सके। और हमने अपना एक क्लासेस शुरू किए जहाँ पे मैं IELTS TOEFL पढ़ाती हूँ, नर्सेस को इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मेरा क्लास है। प्रभु ने हमें आशीर्वादित किया है एक क्लास के द्वारा और हमने उस पर मैं क्लास लेने गई। तो उस दिन सारी नर्सेज मेरे चारों तरफ बैठी थी और मैं नर्सेस को पढ़ा रही थी। अब मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था कि एकदम से अचानक मुझे मेरे फेस पे कुछ अटैक जैसा लगा, कि मुझे लगा कि एक झटका आया है। तो मैं एकदम बैठ गई और मेरे स्टूडेंट ने पूछा, मैडम क्या? मैंने कहा मुझे चक्कर सा आ गया, एकदम अंधेरा छा गया। बोले मैडम बैठ जाइए। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत इनके पास भागी और मैंने कहा कि मुझसे सांस ली नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा जाओ बाहर जाके दौड़ो और सांस ले लो, जो लंबी ऊंची लाइक टेक डीप ब्रेथ। तो मैं गई और मैंने कहा उड़ान सांस लेने लग गई। वो सबसे बड़ी बहुत अच्छा काम मेरे साथ ये हुआ कि हम जब भी ये जो सांस एक्चुअली जो हम लेते हैं वो हमारे पिता परमेश्वर की सांस है। वही सांस है जो उन्होंने आदम के नक्सोरों में फूका था। तो जब मैं वो सांस लेने लग गई, उसने मेरे अटैक को काफ़ी कम कर दिया। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, पर मुझे काफ़ी बेटर लगा। पर उसके बाद जो मेरा राइट साइड एकदम, जो दाहिना साइड मेरा पूरा का पूरा जैसे हज़ारों चींटियाँ काट रही हैं और मेरे को बहुत परेशानी होने लगी। तो मैं आई और मैं प्रभु का वचन होने लगी कि प्रभु आप मेरे साथ हो। आप तो जीसस, बचपन से हमने सीखा था जीसस पावर सुपर पावर, तो ऑल द पावर पावरलेस पावर। तो ये वचन के साथ मैंने शुरू किया सारे वचन, और वो गाना शुरू किया कि प्रभु तू मेरे साथ है, मैंने तुझे पहना है, मैंने तुझे ओढ़ा है, तू मेरे साथ है प्रभु। और वचन बोलने लगे। मेरी सारी नर्सेस दौड़ के आ गई मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा राइट साइड खिंच रहा है। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम टंग्स में को, बिकॉज प्रभु का वचन वही याद आया मुझे, रोमन्स का अध्याय रोमन्स 8:26 कि भाई तुमको जब नहीं मालूम तुम्हें किसकी प्रार्थना करनी, पर पवित्र आत्मा को मालूम है और वो खुदा से बात करते हैं रुदन में। तो मैंने वो टंग्स में चली गई, मेरे हस्बैंड टंग्स में प्रार्थना करने लग गए। नर्स ने चेक किया, अब उनको मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या हुआ है, उन्होंने तुरंत 108 मंगाई कि एम्बुलेंस आ गई। अब यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। एम्बुलेंस आता है और एम्बुलेंस बोलता है उनके पास स्ट्रेचर नहीं है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ धीरे धीरे बताया उनको कि भाई वो बोले स्ट्रेचर नहीं है, आप व्हील चेयर कुछ है तो ले चलिए। तो मैं अपने रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के उतरी, लिफ्ट के पास गई,
और वहां से मेरी एम्बुलेंस से जाने के लिए मुझे चल के जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं चल के जा सकती हूँ। देखिए, जैसा पुष्पा जी ने भी बताया कि शैतान हमारे पास तब फटकता है जब हमारे दिल में प्रभु के वचन होते हैं। तो मैं एक वचन लेना चाहूंगी, लूकास 22 वचन 31 and 32। સિમોન સિમોન ધ્યાન રાખજે, શેતાને તમને બધાને ઘઉંની જેમ ઝાટકવાની રજા મેળવેલી છે, પણ તારે માટે મેં પ્રાર્થના ગુજારેલી છે કે તારી શ્રદ્ધા ખૂટે નહીં અને તને પસ્તાવો થાય ત્યારે પછી તું તારા ભાઈઓને મક્કમ બનાવજે। अब यहाँ पे ये वचन कह रहा है कि जीसस कहते हैं पीटर को कि शैतान ने परमिशन ली है तुम्हें परेशान करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं शैतान ऐसे हमला नहीं करता किसी पे, वो परमिशन लेता है। एक प्रभु के सेवक को, एक प्रभु के दास को, एक जो प्रभु में है, उसे शैतान भी नहीं छू सकता। पर शैतान जब छूने कब आता है, जब क्योंकि उस सेवक के अंदर वचन है, और वो वचन जब आता है, एक्चुअली उस सेवक से उसको प्रॉब्लम नहीं है, वचन से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वचन जो उसके अंदर है, जब वो वचन बाहर जाएगा तो कितनों के अंदर वो वचन उगेगा। इसलिए वो वचन निकालने के लिए वो हैरान करता है। पर यीशु यहाँ कहते हैं कि पर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारी श्रद्धा कम ना हो। और वो कहते हैं जब तुम वापस आओगे तो तुम अपने भाइयों को बताओगे। ये वचन जो है, ये वचन इतनी ताकत दी थी मुझे उस समय, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे डर नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा प्रार्थना कर रहा है। और कैन यू इमेजिन, जब एक कोई भी एम्बुलेंस बिना स्ट्रेचर के आएगी, वो स्ट्रेचर आता और वो बोलती मैं स्ट्रेचर नहीं है, और मैं चल के जाती हूँ और इतनी ऊंची एम्बुलेंस से मैं उस पर चढ़ती हूँ और मैं बोलती अब क्या करूँ, बोलती लेट जाइए। और मैं इतने आनंद में थी। क्यों आनंद में थी? क्योंकि मैं उस टंग्स में प्रार्थना करी थी, मेरे लिए मेरा खुदा प्रार्थना कर रहा था, मेरे लिए पिता परमेश्वर तैयार थे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। और मैं वहां पहुंचती हूँ हॉस्पिटल पी पॉ करके उसमें, और मैं हंस रही, मैं बोली प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पर मुझे मानो तुम मेरे साथ है। और मैं पूरे रास्ते टंग्स में प्रार्थना करते करते और यही कि प्रभु तू मेरे साथ है। और मैं ये गीत गाते गाते हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। हॉस्पिटल में दरवाज़ा खुलता है, तो ध्यान से सुनिएगा, दरवाज़ा खुलता है, मेरा जो स्टूडेंट था, जो नर्स, वो उतरते हैं और मैं भी उनके पीछे पीछे खड़ी हो जाती हूँ। वहाँ देखती हूँ कि एक लंबा सा स्ट्रेचर लेके 2 लोग, मतलब जैसे ही आता है सब पूरा मेडिकल स्टाफ तैयार हो जाता है, और वो मेरे पीछे देख रहा है कि भाई पेशेंट किधर है। तो मेरा जो स्टूडेंट था वो अपना सिर लगा के बोलता आज पेशेंट है। मैं खड़ी हूँ, हाय, और मैं उतरती हूँ, मुझे हाथ पकड़ के उतारते हैं और मुझे फिर व्हील चेयर पे बैठाते हैं वो, और डॉक्टर के पास अंदर लेके जाते हैं। डॉक्टर जब मेरे रिपोर्ट्स देखते हैं तो ही इज शॉक्ड, क्योंकि शुगर 500, क्योंकि मुझे शुगर नहीं था, शुगर 500, बीपी 200 प्लस, और मैं हंस रही हूँ। वो बोल रहे आप ठीक है? मेरे स्टूडेंट को लगा मैडम पागल हो गई है, क्योंकि तब तक मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या हुआ है। फिर मुझे बोलते हैं अब तो इनको बड़े, फिर इमरजेंसी में रूम से वो लोग मुझे बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वापस व्हील चेयर में। और मेरी एक स्टूडेंट मिलती है, हाय प्रेज द लॉर्ड करती हुई मैं उसके पास, उससे क्या हुआ? पीछे से डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तब भी मुझे मालूम था क्या हुआ है मुझे। डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर मेरी शक्ल देख के बोलते बैठे हो। फिर डॉक्टर साहब ने बोला मैडम सर ये इमरजेंसी है। तो मुझे बोलते खड़ी हो जाओ, लेट जाओ। तो मैं खड़ी होती हूँ, और डाइनिंग टेबल जितनी उससे भी ऊंची टेबल थी, उस पर चढ़ती हूँ और मैं लेटती हूँ। तो पीछे से असिस्टेंट डॉक्टर बोलता सर पेशेंट है, इसको ये हुआ है। बोलते लगता तो नहीं। वो मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं हाथ दो, हाथ खींचो, मेरा हाथ दबाओ, पैर उठाओ, वो जो बोल रहे हैं सर इधर उधर करो, मैं सब कर रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ। आफ्टर दैट डॉक्टर बैठते हैं एंड ही शॉक्ड, परेशान है वो कि मुझे क्या बोलेंगे, कि रिपोर्ट बता रही है कुछ और मेरा कंडीशन कुछ और कह रहा है। मुझे बोलते मैडम आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने कहा क्या? तो क्या आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है? ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, और उसकी वजह से इंसान को या तो पैरालिसिस होता है या इंसान कोमा में जाता है। पर आपकी कंडीशन से नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो चल रही हैं, फिर रही हैं, चढ़ रही हैं, हंस रही हैं।
पर असर आपको है क्योंकि आपके सिम्टम्स कह रहे हैं, और इसको प्रूव करने के लिए हमें MRI लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और तब मुझे झटका लगता, लॉर्ड ये क्या हो रहा है। अब मेरी वचन बदल गए। अभी तो मैं प्रेज एंड वर्शिप कर रही थी, अब बोलती प्रभु डिवाइन एक्सचेंज, क्योंकि मुझे मालूम है तूने ऑलरेडी जंग जीत चुका है क्रॉस पे। क्यों? क्योंकि आपको जब कांटों का मुकुट पहनाया था तो उसमें से खून की धारा बही थी, तो क्लॉट तो निकल चुका है। और मैं प्रेज द लॉर्ड, मैं उनके उससे उतरती हूँ, और अब बस डिवाइन एक्सचेंज बोलते बोलते, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था क्या प्रार्थना हो रही है, क्या हो रहा है मुझे। अब मैंने कहा मैंने तो जंग जीत ली, और मैं यहाँ वहाँ देखती हूँ, मेरे हस्बैंड का कहीं पता नहीं। आई एम अलोन ओनली विद माई स्टूडेंट एंड माई अदर स्टूडेंट भाग जो साथ थे वो भाग के आते हैं, और तब तक सबको पता चल जाता है कि वंदना मैम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, बोले चलो चलो MRI में लेके जाना है। और मैं इधर उन्होंने कहा सर कहाँ है, पता नहीं, वो तो आए ही नहीं। कहा ओके कोई बात नहीं। पर ये भी देखिए एक प्रभु का दास को पता है कि ये वो क्या संभालेंगे, तो प्रभु को संभालना है। वो अपना क्लास बंद करते हैं और टेंशन नहीं करते, बिकॉज प्रभु ने कहा है तुम मेरे ऊपर रेस्ट करो। गुजराती में वचन क्या है? विश्राम करो मेरे ऊपर। तो वो विश्राम ही कर रहे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप देखो, मैं इसको मेरा अपना जिम्मेदारी निभाता हूँ। क्लास और क्लोज किया, फिर घर गए, क्योंकि हम तो स्कूटर पे गए थे, वहाँ से कार लेके भी वरना को जो भी हुआ कहीं भागना दौड़ना पड़ेगा, इसलिए वो कार लेते हैं और अपना बैग वगैरह सब रख के आते हैं। जब तक मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती थी मैंने कहा सर नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी, और उन्होंने कहा था कि आपको जल्द से जल्द MRI लेके आना है, बिकॉज मुझे विंडो पीरियड है कुछ 3 घंटे का स्ट्रोक के बाद, उसके बाद हम आपको कुछ नहीं, हम ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते, उसके अंदर ही ट्रीटमेंट करना है। मैंने कहा ठीक है चलो कैब में चलते हैं, मैं अभी बिंदास, हाँ कैब में चलते हैं। इतने में ये आए तो मैंने कहा आपको पता है मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, बोलते प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ। तो मैं कार में बैठती हूँ और मैं ये मुझे लेके जाते हैं वहाँ पे। हम लोग यही बस डिवाइन एक्सचेंज बोलते बोलते जाते बोलते डोंट वरी यू आर ऑल राइट, क्योंकि प्रभु ने तो जंग जीत ली है। 2026 ये जो भी हो रहा है प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है, लेट अस रिजॉइस। वही हाल था जो पौलुस सिलास का था, जब वो जेल में उनको बंद किया था। आधी रात को वो सिर्फ प्रभु का वचन गाते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, और फिर वहाँ पे अर्थक्वेक आता है। आप लोग को सब पता है आगे क्या हुआ। तो वही हाल हमारा था कि हम दोनों बस पॉल एंड सिलास की तरह प्रभु के वचन गा रहे, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। वहाँ पहुंचे MRI के पास, बाकी सब परेशान, नर्सेस परेशान कि क्या हो रहा है मैडम, वरना मैम को फटाफट MRI लेना है, फिर वापस लेके जाना है ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। MRI मशीन में फिर हमको, मैं वहाँ जाती हूँ, फिर उन्होंने मुझे MRI मशीन में डाला और मैं टंग्स में हूँ, इनको बाहर बिठाया, अन्य भाषा बोल रही हूँ और इतनी आवाज़ है वहाँ पे। पर प्रभु ने कहा है ना कि जब भी प्रार्थना करो अपने रूम में, ऊपर के रूम में जाओ और मुझसे प्रार्थना। ऊपर का रूम क्या है? हमारा हृदय। कि जब हम प्रभु के साथ अपने हृदय में, कि प्रभु यही है ना, तो जब हम हृदय में मिलते हैं तो प्रभु हमारे साथ बात करते हैं। मेरे साथ वही हुआ कि जब मैं टंग्स में प्रार्थना कर रही थी और प्रभु के साथ ही थी, और इतनी जोरदार जो आवाज़ें चल रही थी उसमें एक मधुर आवाज़, एकदम मीठी आवाज़ आती है। इंग्लिश में बोला प्रभु ने, वंदना, जीसस को इंग्लिश आती है हिब्रू के साथ। उन्होंने कहा वंदना, आई एम देयर विद यू इवन इन द डार्केस्ट ऑफ द वैली। मतलब वंदना मैं तुम्हारे साथ हूँ अंधियारी गलियों में भी। साम 23। मैंने कहा प्रभु ये तो साम 23 आपने मुझे बोला है, थैंक यू। और बस मेरा ये बोलना धन्यवाद यीशु, और मेरा अटैक बंद। जो अटैक झुंझुन आ रहा था, जो हजारों चींटियां काट रही थी, सब बंद। और फिर रिपोर्ट आती है। कैन यू इमेजिन रिपोर्ट में क्या आया होगा? रिपोर्ट वाले नॉर्मली जब ब्लड क्लॉट, जब ब्रेन स्ट्रोक जिसको होता है उसका ब्लड क्लॉट बताते कि कितना अमाउंट का, कितना माप लेते हैं कि कितना खून का क्लॉट हुआ है। यस, वो मेरा खून का माप ही नहीं ले पाया। रिपोर्ट कहती है खून आया, ब्लड क्लॉट आया और चला गया। दे कुड नॉट मेजर द क्लॉट। और बोलते जब ब्लड क्लॉट आता था पूरा, वो जो जिस पार्ट में ब्लड क्लॉट आता वो पार्ट का ब्रेन जो है वो खत्म हो जाता है। मेरे पास तो क्लॉट उन्होंने मेजर ही नहीं किया। हल्का सा अफेक्ट आया था, पर यीशु ने मुझे वहाँ पे भी बचाया। और जब वापस आए, रिपोर्ट देख के डॉक्टर वापस परेशान
कि इसको तो कुछ मेजर ही नहीं है हम क्योंकि वो जितना मेजर वो करेंगे, जितना माप लेंगे ब्लड क्लॉट का, उसके हिसाब से वो इंजेक्शन देंगे। और इंजेक्शन जो है शुरुआत होती है 50,000 से, हो जाती है 1.5-2 लाख की, ऐसा है। वो मेजर ही नहीं किया, बोला मैं इसको इंजेक्शन दूं तो कौन सा दूं। डॉक्टर फिर सर खुद जा रहे, सारे डॉक्टर चारों बाजू, आप बताएं। और मुझसे पूछ रहे आपको क्या हो रहा है। मैं कहा मैं ठीक ठाक हूँ। वो मेरा मुंह देख रहे हैं, मैं ठीक ठाक हूँ, हंस रही हूँ। कुछ हो रहा है? मैंने कहा नहीं, बस खाली झुंझुनी जैसी हो रही है और कुछ नहीं। बोले ओके ओके ओके। फिर उन्होंने कुछ मेजर किया और सबसे कम डोज का जो दवाई था वो मुझे इंजेक्शन दिया और प्रेशर की दवा इंजेक्शन दिया ताकि प्रेशर नीचे आ जाए। रात को जब वो आए शाम को, और डॉक्टर आ रहे जा रहे, वो देख रहा हूँ, मैं सबको प्रेज द लॉर्ड, मैं ठीक हूँ, प्रभु की महिमा हूँ बोल रही हूँ। नर्सेस मेरा मुंह देखे, डॉक्टर्स मेरा मुंह देखे और वो रिपोर्ट को देखे, बोले रिपोर्ट कुछ कह रहा है, ये तो कुछ और ही गा रही है। उसके बाद रात को खाना आया तो मैं आराम से बैठ गई, पर जब चम्मच लेने गई तो चम्मच मेरे हाथ से छूट गया। तो डॉक्टर को समझ में आया कि ब्रेन स्ट्रोक था और इनको उंगलियों में अफेक्ट हुआ। नहीं, उंगली मसल्स का नहीं पकड़ ही नहीं पा रही थी, मतलब उंगलियों पे असर आया था। बाद में मुझे समझ में आता है कि क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, मैं लिखती हूँ ना, शैतान ने मेरी उंगलियों पे अटैक करा और बाकी पूरा पार्ट ऑफ द बॉडी बच गया। डॉक्टर्स ने बोला आप तो बहुत अच्छे हैं कि आप बच गए, नहीं तो लोगों को बहुत सारा हो जाता, कोई इवन ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। और मेरा बहुत जो कंडीशन था उस हिसाब से मुझे तो बैठना ही नहीं था। पर फिर डॉक्टर ने मुझे दूसरे दिन से चलाना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा जब प्रभु मेरे अंदर जिंदा है, गैलेशियन 2:20 के हिसाब से हम यीशु के साथ मर गए और यीशु जब जिंदा हुए तो हमारे अंदर है। तो मैंने कहा यीशु मेरे अंदर जिंदा है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा मैं ना, कोई भी जो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं आप लोग, जैसे स्पंज करने का या जो भी बेड पैन, जो भी, मैंने कहा मैं नहीं, मैं सब काम करूँगी, आप मुझे पकड़ के ले जाओ। तो आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैं चलने लग गई सेकेंड डे। एंड डॉक्टर्स वर अगेन शॉक कि पेशेंट इतनी जल्दी चलता नहीं, चलाओ, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब मैं बोल रही थी पर वेरी गुड करके उन्होंने मुझे चलवाया। और 2 दिन में आईसीयू से, बोले ठीक है, 2 दिन में आईसीयू से मुझे शिफ्ट कर दिया स्पेशल रूम में। फिर पुष्पा जी को फोन किया कि भैया ये हुआ है, आइए मिलने। इमेजिन कोई पेशेंट बोलता है आइए मिलने मुझे, पुष्पा जी लोग आए। एनीवे फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने, और वहाँ पे जब मैं नीचे स्पेशल रूम में गई तो मैंने बोला प्रभु, अगेन यही वचनों के साथ चल रही थी और मैंने कहा मुझे सहारा नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे अपने आप चलूंगी। और मैं बिना सहारे के वॉशरूम जाने लग गई, चलने लग गई। करते करते हम घर आ गए। फिर मैं अपना क्लास भी शुरू कर दिया, पर युद्ध अब शुरू हुआ मेरा, क्योंकि शैतान थोड़ी ना ऐसे मानेगा, उससे तो परमिशन लेके रखी है खुदा से, पर मेरा यीशु भी तो नहीं मानेंगे ना, वो भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध इतना शुरू हुआ क्योंकि जो दवाइयाँ थी उनका इतना साइड इफेक्ट हुआ कि मुझे डिप्रेशन जैसा हो गया था, क्योंकि राइट साइड में चल नहीं पा रही, काम नहीं कर पा रही पूरी तरह से, लिख नहीं पा रही। अब किसी टीचर को आप बोले आप लिखो, बंद हो जाए, साइन भी नहीं कर सकते, तो आप तो एक अनपढ़ गंवार जैसे हो गए ना। तो मुझे वो दिमाग में आने लग गया। काफ़ी मेरा वचन भी बोलना छूट गया, मैं बस रोती रहती थी, परेशान होती रहती थी। ये मेरे पास आके प्रार्थना करते थे, चिंता नहीं करो, मेरे बच्चे प्रार्थना करते थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। 1 महीना 2 महीना रात भर तक परेशान इन लोग को जगा के रखती थी, ये दुख रहा है, बॉडी परेशान हो रहा है। और दवाइयाँ ऐसी थी कि मुझे घेर में रखती थी, तो मैं चल नहीं सकती थी, मैं नहा भी नहीं पाती थी। मैं बोलती थी प्रभु हॉस्पिटल से तो मुझे आपने जल्दी से निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पर वो मेरा युद्ध था जो मेरा यीशु, मेरा पिता परमेश्वर लड़ाई कर रहे थे। 2 महीने बाद थोड़ा मुझे, जब प्रभु के साथ बात हो रही थी, पुष्पा जी और आप लोग की पूरी टीम आई थी मेरे लिए प्रार्थना करने, और तब मैं समझ में तो इतना नहीं आ रहा था, पर वो प्रार्थनाओं से इतना असर हुआ था सिस्टर कि मुझे एक अंदर से पवित्र आत्मा वापस बात करने लगी, कम से कम देखो तो सही ये कौन सी दवाइयाँ खा रही हो तुम। और मेरा जो आदत है हमेशा ढूंढने का, तो मैंने दवाइयों का नाम गूगल पे डाला और ढूंढने लगी, तो उन सब के साइड इफेक्ट मालूम पड़े, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी और बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा ये तो गलत दवाइयाँ खा रही हूँ मैं। डॉक्टर के पास बोली, मैं कहा ये दवाई नहीं खानी मुझे, हर महीने फॉलोअप होता था। मैंने कहा मुझे ये दवाइयाँ नहीं खानी।
क्योंकि ये दवाइयों से मुझे साइड इफेक्ट होगा मेरे। अब एक दिन तो इतना पेट में दुखा तो डॉक्टर बोला इसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इतना दुख रहा था पेट। सिम्टम तो ये था कि इसका किडनी गया, और डॉक्टर जब रिपोर्ट लेते हैं तो किडनी तो भली चंगी है, बोले आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो डॉक्टर बोलते तुमको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तब समझ में आया मुझे कि क्या हो रहा है, और जब मैंने गूगल पे चेक किया तो मालूम पड़ा सारे साइड इफेक्ट थे। मैंने कहा मुझे कोई दवाई नहीं खानी, आप मुझे कम उसकी दवाई दो। फिर डॉक्टर ने फिर प्रभु के महिमा से उन्होंने दवाइयाँ जो दी वो कम डोज की दी, जिससे मुझे साइड इफेक्ट बंद हो गए। उसके बाद में वापस मैं प्रभु का महिमा गाने लगा। मैं डरने वाली नहीं, करते करते 6 महीना हो गया। 6 महीने में जो मैं शुगर की टैबलेट्स ले रही थी, डायबिटीज, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें जिंदगी भर खाना पड़ेगा, जो मैं कैंसिल करती प्रभु यीशु के नाम से। और 6 महीने में ऐसा हुआ कि वही गोलियों से मुझे चक्कर आने लग गए, रात भर एकदम पसीने पसीने हो जाती थी। हॉस्पिटल में भी एक बार हुआ तो उन्होंने इंसुलिन बंद कर दी थी, फिर वापस यहाँ घर पे होने लगा तो डॉक्टर बोला कि नहीं तो गोली खाती है और इसको परेशानी हो जा रही है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि एकदम बॉर्डर लाइन 5.7 आना चाहिए, 8 होना चाहिए, मेरा 5.7 कुछ था, कि 1.1 के हिसाब से था। बोले तुमको तो बिल्कुल शुगर है ही नहीं। मैंने कहा दूसरी बार बोली, बोलते हंस रहे, बोले तुमको शुगर नहीं है। और फिर बोला फिर भी प्रिकॉशन के लिए जब तक कि तुम्हारा ये चल रहा है ट्रीटमेंट, कभी भी तुम कभी भारी खाना खाओ, मतलब जो खाना जिससे ज़्यादा शुगर उत्पन्न होता है तो उस टाइम पे तुम गोली खा लेना। तो कभी शादियों में जाना, कभी कुछ करना, उसके खाने खाना, तो पर अदरवाइज वो गोली बंद हो गई मेरी। करते करते जो मेरे शरीर में दर्द होता था बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक की वजह से, उसकी दवाई डॉक्टर ने दी थी, न्यूरो की दवाई, वो भी मेरी। अभी रिट्रीट के टाइम पे मैं गई, जब मंथ ऑफ अप्रैल में रिट्रीट था ब्रदर जॉनसन का, तो वहाँ पे मैं दवाइयाँ तो सब लेके गई थी, पर वहाँ पे मुझे दर्द ही नहीं हुआ। काम खूब किया, दर्द ही नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आया कि काम करना पड़ेगा, वरना प्रभु का नाम ले लेके काम करना पड़ेगा। दवाई, फिर वो दवाई बंद हो गई। बीपी की जो 2 खाती थी, करते करते वो 1 ही हो गई, रात को खाना है। तो इन शॉर्ट अभी जो इतनी 15-20 दवाई लेके आई थी 2025 में डॉक्टर के पास से, वो सारी करते करते 1 हो गई। पर मैंने दवाइयाँ खाना बंद नहीं किया, बिकॉज प्रभु का वचन कहता है कि आप जैसे, जब प्रभु को उसने बोला था, शैतान ने बोला कि आप ऊपर से कूद जाओ, तुम तो प्रभु यीशु के पुत्र हो, तुम्हें तो एंजल्स आके बचा लेंगे, 91 साल उसने बोला। तो यीशु ने कहा था हमें ईश्वर को परीक्षा में नहीं लाना चाहिए, कसौटी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने भी कहा मैं कसौटी नहीं करूँगी, आपकी दया से, आपकी महिमा के लिए मेरा अपने आप में ठीक होंगे और दवाइयाँ डॉक्टर ही बंद करेंगे। और वही मेरे साथ आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दया से, सिर्फ उनकी प्रार्थना से। यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की ताकि मेरा श्रद्धा कम ना हो, मेरा विश्वास कम ना हो। और उनका वचन है कि जब तुम वापस आओ तो अपने लोगों को बताओ। तो आज मैं आप लोग सबको बता रही हूँ यीशु की महिमा के लिए कि यीशु ने हमें छोड़ा। गाना गाती थी वही जरा हमें मैं हमेशा यही गीत गाती थी, अभी भी गाती हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैंने पहना है, मुझ में वो जिंदा है, यही तो मेरी ताकत है, हमें नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्या? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। Praise the Lord. Praise the Lord. આમની સાક્ષી આપણને જબરજસ્ત હિંમત આપે છે. કષ્ટ છે, તકલીફ છે, અસહ્ય શારીરિક દુખાવા છે, પણ મોઢામાંથી શું નીકળે તો કે વચન. કોલગેટની પેસ્ટ હોય ને, કોલગેટ, પછી સવારમાં તમે બ્રશ કરવા માટે એને દબાવો તો શું નીકળે? પેસ્ટ નીકળે, કોલગેટ પેસ્ટ. પછી તમે એને પાછળ એને હોલ કરો ને પછી દબાવો તો પાછળથી શું નીકળે? શું નીકળે? કન્ફર્મ પેસ્ટ જ નીકળે. અચ્છા,
તમારું છોકરું સાઈડ પરથી એમાં ટ્યુબમાં કાણું પાડે તો સાઈડ પરથી શું નીકળે? અંદર જે હશે ને એ નીકળે. દુઃખ હશે કે સારા દિવસો હશે, ખરાબ દિવસો હશે, સામાજિક પ્રસંગોમાં, આનંદમાં, ગમે તે જિંદગીના ગમે તે સંજોગોમાંથી પસાર થતા હશો, પણ અંદર જે હશે એ બહાર આવશે. વંદનાબેને આટલા મોટા બ્રેઇન સ્ટ્રોકને પણ એ જે અંદર વચનો હતા એને કઢીને પેલાને બગાડ્યો. પ્રભુને